The content is sentence. What is first? We would get to know what is sentence. Then we would see types of different sentences. Then we would see formal labels on the sentences, like how they are divided in different functions. Then basic sentence pattern, which is there to make an easy sentence. Then basic sentence types can be there, like formal and semantic. Uh, what are they and how do they work? I'll tell you everything. Then coordination, subordination, and coordination and subordination is actually for conjunctions point of view, which you already know. Conjunctions होते हैं ना, coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlative conjunctions. तो उनके साथ mix करके there are different types of sentences which you can make. So this is actually you are going to get the real knowledge of how to make sentences. Please pay attention. Two ways of defining. First is the formal, the based on punctuation type, which we can say, जिसमें हम कहते हैं कि पहले ये आना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए, फिर डॉट आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, वगैरह वगैरह. The other is notional. Notional means based on meaning. कि मीनिंग निकलना चाहिए सेंटेंस का. सेंटेंस में पहले ये आया वो बाद में आया नहीं, मीनिंग निकलना चाहिए तो सेंटेंस पूरा हो जाता है. डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की? बेस्ड ऑन फंक्शन स्टेटमेंट हो सकता है. इट कैन बी अ स्टेटमेंट, एनीबॉडी सेइंग समथिंग, announcing something, declaring something, or just giving answer. Or it can be a question, in anybody is asking question, then it can be a form of a question. Or it can be a command, anybody is asking anybody to do something. It can be a request, it can be maybe an order, like that. So that is what is functions based sentence are. It can be statement, question, or command. Then constituents of the sentence. What is included in a sentence? Mainly there should be two things which should be clear in a sentence. First, the verb has to be there. आपको मैंने बताया बिना verb के कोई sentence नहीं होता है. And if the verb is there, the subject or the doer of that verb will be also there, right? It may be not written completely, but it should be there understood completely, right? तो वर्ब एंड सब्जेक्ट ये दोनों चीज जरूरी, बाकी हो नहीं हो वो बाकी चलता है. टाइप्स क्या होते हैं? फंक्शनल टाइप्स जो सेंटेंस के होते हैं वो अलग है, और जो ग्रामर टाइप्स होते हैं वो ये हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. अब ये क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको. एंड पंक्चुएशन का क्या ध्यान रखना पड़ता है उनके अंदर में, वो भी आएगा. सो लेट्स सी सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस सबसे पहला क्या होता है, उसमें क्या होता है? सिंगल क्लॉज. नाउ व्हाट इज क्लॉज, वो आपको पता होना चाहिए. क्लॉज मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे ओके, लेट मी गिव यू सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. वो बाद में आएगी डिफिकल्ट वाली, पर सिंपल वाली मैं बता देता हूँ. थ्री थिंग्स देर आर talk together. One is phrase, the other is clause, the third is sentence. Phrase means group of words. Clause also means group of words. Sentence also means group of words. But they are all three different. How? I'll tell you. Phrase group of words होता है, but उसमें group of words में verb नहीं होती है. मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होती है. और क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसके अंदर वर्ब भी होती है. वर्ब होनी चाहिए क्लॉज के अंदर में. और जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है, उसके अंदर वर्ब भी होती है, लेकिन उसका पूरा पूरा मीनिंग भी होता है. नाउ दैट्स द बेसिक डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड. फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें वर्ब भी नहीं होती है, तो पूरा मीनिंग तो निकलेगा नहीं. और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन उसके अंदर में वर्ब होती है, पूरा मीनिंग नहीं निकलता है. और सेंटेंस जो होता है उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ब भी होती है और पूरा मीनिंग भी निकलता है. दीज आर द डिफरेंसेस यू नीड टू नो. अब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ही क्लॉज होगा. क्लॉज मतलब उसके अंदर में वर्ब होगी, उसके अंदर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और उसका सिंपल सा मीनिंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, इसीलिए वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, राइट? ना मल्टीपल सेंटेंसेस वो क्या होते हैं? मल्टीपल सेंटेंसेस मतलब अलग अलग दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया. तो कैसे बन सकते हैं वो? इस तरीके से बन सकते हैं. तीन कैटेगरीज हैं उसके अंदर में. एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है? कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों मिक्स में. कंपाउंड सेंटेंस क्या बनता है? जब दो क्लॉजेस को मिलाएं, दो सेंटेंसेस को मिला के एक नया सेंटेंस बनाएं, लेकिन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हों. इंडिपेंडेंट मींस एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और लेकिन दोनों साथ में आए हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, वो बस उतना रिलेशन है उनका, दोनों साथ में आए हैं, तो वो कंपाउंड हुआ.
ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहां पे दो क्लॉज तो होंगे ही सही, लेकिन उनमें से एक या एक से ज्यादा जो भी हैं वो डिपेंडेंट होंगे, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनका एग्जाम्पल के साथ में मैं बाद में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सीन, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी इजीली। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अब कंपाउंड है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, एक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट भी होगा एक ही सेंटेंस के अंदर में, ऐसा भी हो सकता है। सेंटेंसेस को इसी तरीके के बन सकते हैं, पूरी जितनी भी इंग्लिश होती है ना वर्ल्ड में, उसमें यही सेंटेंसेस हो सकते हैं। या तो सिंपल सेंटेंस होगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो जनरली हम लोग आप बोलते हैं लोग, या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे, मींस बड़ा सेंटेंस है लेकिन आपस में क्लॉजेस का कोई रिलेशन नहीं है। या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज के ऊपर दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ सिंगल क्लॉज सेंटेंस का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सेंटेंस का। वो क्या होता है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें एक सिंगल क्लॉज आया, टीचिंग वर्ब है और सब्जेक्ट दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन। तो एंड लगाया मैंने, एक कंजंक्शन लगाया और दूसरा क्लॉज उसके साथ में जोड़ दिया, यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन। यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन इंडिपेंडेंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तभी आप ऑनलाइन देख सकते हो सकता है हम लोग मीटिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो तो भी हो सकता है, राइट। सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग दैट्स वाई आई गॉट द अम्ब्रेला, ठीक है ना। मैं अम्ब्रेला बिना रेन के नहीं लाता, तो इट वॉज रेनिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट्स वाई आई गॉट द अम्ब्रेला, आई गॉट द अम्ब्रेला डिपेंडेंट क्लॉज हो गया इंडिपेंडेंट के ऊपर, दूसरे के ऊपर, रेनिंग के ऊपर, अंडरस्टैंड। तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें दो इंडिपेंडेंट हो गए। When Ramesh was teaching and we were watching him online, it was raining and he got the umbrella. ओके, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, जिसमें पूरा सेंटेंस एक बनाया है लेकिन दो इंडिपेंडेंट या दो डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट ऐसे होंगे, लाइक दैट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज दैट, जिसमें दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक डिपेंडेंट जरूर होना चाहिए। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और मिनिमम एक डिपेंडेंट। ये याद रखने की जरूरी है। क्लियर हुआ इतना, जो स्क्रीन पे है वो आप देखो, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझो। एग्जाम्पल पहले वाला सिंगल क्लॉज तो सिंपल है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, या दूसरा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन, ठीक है ना। सो दैट्स सिंगल क्लॉज, दोनों को जोड़ के बना दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, इट वॉज रेनिंग दैट्स वाई आई गॉट दी अम्ब्रेला, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड यू आर वॉचिंग मी ऑनलाइन व्हाइल इट वाज रेनिंग आई गॉट द अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ दैट, अंडरस्टैंड। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए उसमें जरूर। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज की डेफिनेशन पूरी ढंग से समझते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दो तरीके के क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट को फ्री भी बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट को बाउंड क्लॉज भी बोलते हैं, या उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं उसको। तो फ्री क्लॉज क्या होता है, फ्री क्लॉज मतलब जिसमें वर्ब हो, वो वर्ब किसी दूसरी वर्ब से कनेक्टेड ना हो, एज उसका कोई रिलेशन ना हो, वो साथ में आई हो भले चलेगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, उसका रिलेशन ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस सिमिलर टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, फ्रेजेस क्लॉजेस। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको हल्के से ब्रश अप हो जाएगा, तो आपको पता पड़ेगा सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। Modern English grammar includes non-finite verbs forms as clauses. Non-finite verb forms क्या होती है, अब यहाँ पे आपको याद रहेगा, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि verbs जो होती हैं उसकी V1, V2, V3, V4 फॉर्म होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन verbs ओनली। लेकिन जो V3 फॉर्म होती है या V4 फॉर्म होती है, वो कई बार बिना वर्ब के भी आ सकती है।
मीन्स वो एक्शन वर्ब का बना हुआ वर्ड होगा, बट वो बिना वर्ब का रोल प्ले कर भी हो सकता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें टीचिंग जो है वर्ब है, यू गाइस अग्री? आई एम टीचिंग इंग्लिश। बट अगर मैं बोलूं टीचिंग इज माई हॉबी, राइट, टीचिंग इज माई हॉबी या टीचिंग इज माई पैशन, ऐसे मैं बोलता हूं, तो इस सेंटेंस में टीचिंग आया बट वो टीचिंग वर्ब नहीं है। टू अंडरस्टैंड दैट बेटर आई विल गिव यू, क्या हिंट है उसका, आप दोनों का हिंदी कर लो। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो वहां पे टीचिंग का मीनिंग क्या हुआ? पढ़ा रहा, तो वो वर्ब है। और टीचिंग इज माई हॉबी, उसमें टीचिंग का मीनिंग क्या होगा? पढ़ाना मेरी हॉबी है या पढ़ाना मेरा शौक है, तो वहां पढ़ाना मीनिंग निकला, पढ़ा रहा नहीं है। ठीक है, तो वो वर्ब नहीं है पढ़ाना, वो एज अ नाउन आया है, एज अ नेम आया है ऑफ द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंड? तो वो उस वर्ब का नाउन बन के आया है, वो जिरंड कहलाता है। और जिरंड बनता एक्शन वर्ब से ही है, ठीक है ना? जेरेंड बनता एक्शन वर्ब से ही है। ऐसे ही पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल जैसे मैं आपको बताऊं, रनिंग वाटर इज ऑलवेज फ्रेश, तो रनिंग आईएनजी फॉर्म रनिंग का आया, लेकिन वो वाटर की डेफिनेशन, वाटर का फीचर दे रहा है, वो कहाँ, वहां पे कोई भाग नहीं रहा है। रनिंग का मतलब होता है भागना, लेकिन कोई भाग नहीं रहा है। रनिंग वो वाटर का फीचर आया है, ऐसा वाटर जो बह रहा हो, राइट? तो वहां पे रनिंग क्या है? एज एन एडजेक्टिव बन गया है, तो वो आईएनजी पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ऐसे ही ईडी पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसे वी थ्री फॉर्म बोलते हैं। जैसे इट इज अ ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म में आया। वो ब्रोकन यहाँ पे कोई तोड़ नहीं रहा है या कोई तोड़ चुका नहीं है, वो टूटा हुआ ग्लास है, तो ग्लास का फीचर बता रहा है। तो ब्रोकन, रनिंग, टीचिंग, ये सब बने एक्शन वर्ड से हैं, लेकिन ये वर्ब का रोल नहीं करते हैं किसी किसी सेंटेंस में। तो आपको सेंटेंस के अंदर देखना होता है कि वर्ब का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो वर्ब है, सिंपल। वर्ब का रोल नहीं प्ले कर रहा है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अंडरस्टैंड? नॉन फाइनाइट वर्ब, ये यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड्स नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स एज क्लॉजेस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला टीचिंग इज माई हॉबी, जैसे मैं अगर मैं बोलूं आफ्टर टीचिंग आई विल हैव सम वर्क टू डू, ऐसे। अगर मैं बोलूं आफ्टर टीचिंग आई विल हैव सम वर्क टू डू, उसमें भी टीचिंग आया, लेकिन टीचिंग वाला जो क्लॉज था आफ्टर टीचिंग, वहां पे टीचिंग वर्ब नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आया है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म एज अ क्लॉज आ सकती है वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, उसको वर्ब काउंट करते हैं हम, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काउंट करते हैं, बट वो वर्ब का रोल प्ले नहीं करती है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले के तरीके में उसको नॉन फाइनाइट नहीं बोलते थे, उसको सिर्फ पार्टिसिपल बोलते थे, या उसको सिर्फ एडजेक्टिव बोलते थे, या सिर्फ जिरेंड बोलते थे। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर में तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? टू प्लस वी वन, जैसे टू रन, टू जंप, टू गो, टू शाउट, ऐसे क्या हुआ? ये इन्फिनेटिव हुआ। सो इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, ये तीन वर्ड याद रखो आप। ये तीन वर्ड होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो क्लॉज होते हैं उसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज माना जाता है। वरना क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके अंदर वर्ब नहीं हो तो वो क्लॉज नहीं हो सकता, राइट? लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब की भी फॉर्म को भी मान लेते हैं हम क्लॉज में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसको भी वर्ब मान लिया जाता है। दैट्स व्हाट इट सेज, क्लॉजेस। क्लियर हुआ गाइस? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। जैसे क्लॉजेस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर में वर्ब होती है, लेकिन फ्रेजेस पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, बट इसके अंदर वर्ब नहीं होता है। फ्रेज के अंदर में वर्ब नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, नीचे डेफिनेशन देखो नीचे, फ्रेजेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। लास्ट वाला क्या बोलता है? फ्रेजेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स। और क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर मेड अप ऑफ फ्रेज। एंड सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ क्लॉजेस। यानी सेंटेंस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा क्लॉजेस, उससे छोटा फ्रेजेस। इस तरीके से आप समझ सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी।
फ्रेज बड़ा हो सकता है, क्लॉज छोटा हो सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल में, लेकिन सेम एग्जाम्पल में जाओगे तो सेंटेंस सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्लॉज उससे छोटा होगा और फ्रेज उससे भी छोटा होगा, ऐसा। अंडरस्टूड? फॉर्मल एंड फंक्शनल लेबल्स क्या होते हैं इन सब के? फॉर्मल लेबल्स मींस ग्रामर के नाम दिए जाते हैं उनको। जैसे क्लॉजेस में आपने सुना होगा एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सब सुना होगा। तो जिस क्लॉज के अंदर में एडजेक्टिव आता है उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। जिस क्लॉज के अंदर में किसी चीज का नाम दिया जाता है या उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो नाउन बन जाता है। जिस क्लॉज को एज एन एक्शन बताया जाता है वो वर्ब क्लॉज हो जाता है। तो ये सब उनके नाम बनते हैं उनकी फंक्शन के हिसाब से। क्लॉज होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देके, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आई से, आई नो द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। आई नो द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। अब मैंने दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाया है। आई नो द पर्सन, नो एक वर्ब है, यू वर टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग भी एक वर्ब है, ठीक है ना। तो दो क्लॉजेस हुए, उन दो क्लॉजेस को जोड़ के एक सेंटेंसेस बनाया। आई नो द पर्सन वो अलग क्लॉज है, यू वर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हुम एक कंजंक्शन लगना चाहिए था जिसको हटाया जा सकता है। मैंने डायरेक्टली बोल दिया, मॉडर्न इंग्लिश में हुम को हटा के बोल सकते हैं। एक्चुअली में उसका क्या बनना चाहिए था ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर में, आई नो द पर्सन हुम यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। तो हुम हटा के बनाया तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस लगेगा, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश में चलता है। I know the person whom you were talking about last night. तो दो क्लॉजेस, इसको ऐसा समझो, अगर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, I know the person, या सॉरी ऐसे पहले एग्जाम्पल, you were talking about a man last night. You were talking about a man last night. एक सेंटेंस, एक क्लॉज, एक ही सिंपल वर्ब है उसके अंदर में, तो वो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा, आई नो दैट पर्सन, वो भी दूसरा सेंटेंस हुआ। दोनों सेंटेंसेस को मिलाया, आई नो द पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट द लास्ट नाइट। समझ में आया कैसे क्लॉजेस काम करते हैं, कैसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दो सेंटेंसेस सिंपल सिंपल बोले जाएं उसकी बजाय एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया जाए तो इजी लगेगा बोलने में, और दोनों का मीनिंग एक साथ निकल आएगा। मीनिंग क्या था, जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन लास्ट नाइट, एक ये क्लॉज, दूसरा आई नो दैट पर्सन, और दोनों को मिला दिया जाए तो आई नो द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। क्लियर? इस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर में क्लॉजेस बनते हैं। अब ये जो क्लॉजेस होते हैं, जैसे मैंने बोला आई नो द पर्सन, ये क्लॉज हुआ। उसके बाद में क्या आया, अगर ट्रेडिशनल ग्रामर में होता तो हुम लगाना पड़ता। हुम के बाद में मैं उसकी फीचर दे रहा हूँ, उस इंसान का आपको फीचर दे रहा हूँ कि वो इंसान कौन। आई नो द पर्सन, कौन सा पर्सन, वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। तो वो उसका फीचर है, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या होते हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है। तो उनके जो फंक्शंस हैं, अगर कोई क्लॉज सेंटेंस के अंदर में, अगर कोई क्लॉज उन फंक्शन को फॉलो कर रहा है जो नाउन का फंक्शन है। नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाम देना। वर्ब का फंक्शन क्या होता है, एक्शन बताना। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का फीचर देना। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, किसी वर्ब का फीचर देना, राइट। तो जब क्लॉज नाउन का काम करे तो वो नाउन क्लॉज हो गया, जब क्लॉज वर्ब का काम करे तो वो वर्ब क्लॉज हो गया, जब क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सिंपल ऐसा होता है समझने के लिए क्लॉज क्या होता है। नाउ सी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट आर फंक्शनल लेबल्स। वो फॉर्मल लेबल्स थे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, यानी कि ग्रामर के हिसाब से। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, फंक्शनल लेबल, यानी काम करने के तरीके से। अब फंक्शनल लेबल कैसे होते हैं, जैसे सब्जेक्ट तो आपको मैंने बताया है, वर्ब का जो डूअर होता है, रिसीवर, सॉरी, एक्शन का परफॉर्मर या डूअर ऑफ द वर्ब इज नोन एज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। तो आपको वर्ब मिल जाना चाहिए सेंटेंस के अंदर में। Again, last time when I was teaching you verb in the parts of speech, I told you verb सबसे ज्यादा important होता है, right? तो जब भी आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ग्रामर में कभी भी सेंटेंस की बात कर रहे हो, कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन करने जा रहे हो उसके ऊपर, तो सबसे पहले आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि कौन सी चीज वर्ब है उसके अंदर में।
अगर आपने वर्ब को ढंग से समझ लिया उसके अंदर में, तो वर्ब के थ्रू आप बाकी चीजें, सारी चीजें पता कर लोगे और बाकी सारी चीजें कर पाओगे। तो वर्ब समझा, वर्ब मीन्स एक्शन, तो एक्शन को करने वाला कोई होगा तो वो सब्जेक्ट पता हो जाएगा, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट पता पड़ जाएगा, राइट। और बाकी बची हुई चीजें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं सेंटेंस के अंदर में, उस सबको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये सब पता करना इजी हो जाएगा आपके लिए। See, remember the way I have told you to how to identify the verb, how to identify the subject and object. If you remember that way, तो आपका सेंटेंस का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। एक बार सेंटेंस आपकी समझ में आ जाता है ढंग से, तो ग्रामर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली कर सकते हो। बिलीव मी, ग्रामर में आप बहुत सारी चीजें करोगे आगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में बहुत हजारों तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हजारों तरीके की चीजें होती हैं। रिमूव टू, यूज टू वगैरह, वो सब कब कर पाओगे जब आप इसको सेंटेंस को ढंग से समझोगे। तो सेंटेंस को समझना जरूरी होता है, ये चीज वो है जो मैंने आपको बताई है। वर्ब कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, और बाकी बची हुई चीज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। या उसके अंदर में क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, या उसके अंदर में नाउन का रोल कर रहा है कि वर्ब का रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब पता करोगे ना, तो आपको वो सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरी तरीके से समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू चेंज द सेंटेंस इन एनी मैनर यू वांट। जैसे भी चेंज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे उसको। सो दैट्स व्हाट इज इट इज इम्पोर्टेंट। A word or phrase may perform a function or role in one clause or sentence and a different function or role in another clause or sentence. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक वर्ड रनिंग या टीचिंग, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग वर्ड सेम दूसरे सेंटेंस में दूसरा मीनिंग निकाल रहा है। एक सेंटेंस में बोल रहा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दूसरे में टीचिंग इज माई हॉबी, तो टीचिंग का मीनिंग निकल रहा है पढ़ाना। तो एक वर्ड या एक फ्रेज एक क्लॉज के अंदर में या सेंटेंस के अंदर में एक मीनिंग निकालेगा, दूसरे क्लॉज और सेंटेंस के अंदर में दूसरा मीनिंग निकाल सकता है, ऐसा होता है। ये फंक्शनल इंग्लिश है। इसी चक्कर में कई लोग परेशान होते हैं इंग्लिश के, जैसे बहुत डिफिकल्ट लगता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हर एक वर्ड के 10, 20, 30, 40 मीनिंग भी हो सकते हैं। आपको सेंटेंस के अंदर में वो किस रोल में आया है, क्या रोल प्ले कर रहा है, वो देखना होता है, उसका फंक्शन देखना होता है। अगर फंक्शन समझ में आ गया उस वर्ड का, तो आप समझ जाओगे सेंटेंस कैसा है। अंडरस्टूड गाइस? यू गाइस आर विथ मी राइट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत थोड़ा नई चीजें पता पड़ रही होंगी आपको, बट यू शुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड्स एंड द सी थिंग्स यू सी। आर यू गाइस विथ मी राइट नाउ? मार्क योर रिस्पॉन्सेस प्लीज। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? मुझे लगता है शायद तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, काफी जनों को, एक दो जनों को छोड़ के, दो चार जनों को छोड़ के शायद। अगर ध्यान दिया होगा तो शायद सुनने में समझ में आया होगा किसी किसी को। गाइस रिस्पॉन्ड प्लीज, टाइप इन द चैट, डिड यू गाइस अंडरस्टूड और नॉट? कम ऑन, nobody is responding. One response. Okay, let's see. All right, I'll just tell you briefly again. See, फंक्शंस क्या होते हैं और फॉर्मल लेबल, फंक्शनल लेबल और फॉर्मल लेबल होता क्या है सेंटेंस का, वो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शनल लेबल मींस उसके अंदर में वो क्या काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है कि कॉम्प्लीमेंट है, क्या है वो समझना। और फॉर्मल लेबल मींस ग्रामर के हिसाब से वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है कि वर्ब का रोल कर रहा है कि एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, वो समझना होता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने समझा हुआ है पहले से। और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, वर्ब मींस एक्शन, तो उसका डूअर जो होता है सब्जेक्ट होता है, उसका रिसीवर जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। जब भी यू सी अ सेंटेंस, उस सेंटेंस के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको ऊपर आपको ऐसे लिखना है, लेट्स से अ स्टिच इन नाइन सेव्स नाइन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, एक इडियम दी हुई है, उसके ऊपर ऐसे लिखना है।
तो वो स्टिच वहां पे वो वर्ब है कि नाउन है कि क्या है, अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको एक्सप्लेन ढंग से कर पाओगे। या अ स्टिच इन टाइम, उसका मीनिंग क्या हुआ, सेव्स नाइन, तो सेव्स नाइन, नाइन क्या सेव कर रहा है वो समझ में आता है तो आपको एनालिसिस करना आएगा, तो आप उसके ऊपर ऐसे लिख पाओगे। उस इडियम का मीनिंग पता हो नहीं हो, लेकिन अगर आपको ग्रामर उस पॉइंट पे आता है तो आप ग्रामर के बेस पे आप ऐसे कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। प्लस एक्टिव वॉइस करना, पैसिव वॉइस करना, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, एरर करेक्शन पता करना, या फिल इन द ब्लैंक्स भरना, या क्वेश्चन का आंसर देना। हर जगह पे जहां पे भी आप लैंग्वेज यूज करोगे, अगर आपको सेंटेंसेस का थोड़ा सा एनालिसिस आता है, इस तरीके का बेसिक एनालिसिस है, ये हर क्वेश्चन पे जरूरी नहीं होता है करना। कई बार आपको डायरेक्टली आंसर मिल ही जाता है बिना ये सब करे भी। लेकिन जहां आप भटक जाओगे, उस वक्त अगर आप ये कर सकते हो, आपको पता है कैसे करता है ये, तो आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा करना। दैट्स व्हाट द फंडा इज। So it is not necessary to analyze each and every sentence you come across in question paper, yeah, in normal life. But when you need to do something on that sentence, and if you're not able to do it, then analysis कर लो, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। This is the way. So you guys understand what I'm trying to say here? बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? अब बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखा हुआ, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, सिंपल। या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये है, कॉम्प्लीमेंट में एस लिखा हुआ है और कॉम्प्लीमेंट में ए लिखा हुआ है दो। वो कैसे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पेंगुइन्स आर बर्ड्स, लेकिन वो बर्ड्स यहाँ पे नाउन आ गया है, वो बर्ड्स पेंगुइन के लिए, ये वो भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट में वो एक नया एडिशन हो सकता है, पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिका। सो बर्ड्स फ्लाई, पेंगुइन्स आर बर्ड्स, पेंगुइन्स लिव इन द एंटार्क्टिका। ये अलग अलग सेंटेंसेस है। वो पैटर्न क्या चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब शुरू में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट बाद में आ रहा है। या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जहां पे वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट भी आना जरूरी है। और वर्ब के अंदर में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले में देखो, चिल्ड्रन लव पेंगुइन्स, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। चिल्ड्रन, जैसे शीला गॉट कुमार अ प्रेजेंट, शीला ने कुमार को एक प्रेजेंट दिया, राइट। So here are different type of sentences given with different basic sentence patterns. Easiest of them is subject plus verb. Example, birds fly. Next is subject verb with complement. Okay, this complement is for the subject itself. Okay, so that's why it's complement S. Penguins are birds. Then subject verb complement, there's this additional. So penguins live in the Antarctica. Okay, then subject verb object, there are some verbs which require some object for completion of their sense। मैंने आपको बताया था verb के अंदर में उसको object चाहिए तो उसका सेंस पूरा निकलता है। जैसे चिल्ड्रन लव, तो लव के पीछे जवाब देना पड़ेगा क्या, तो चिल्ड्रन लव पेंगुइन्स, तो पेंगुइन्स वहां पे ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे शीला गॉट कुमार अ प्रेजेंट, तो कुमार यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज क्या का जो जवाब होता है अ प्रेजेंट, उसने क्या दिया, अ प्रेजेंट। किसको दिया, कुमार को, तो क्या दिया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, किसको दिया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ऐसा आ सकता है। या फिर शीला मेड कुमार हर सेक्रेटरी, शीला ने कुमार को अपना सेक्रेटरी बनाया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऑब्जेक्ट दूसरा क्या बनाया, उसका सेक्रेटरी बनाया, ऐसा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शीला लेफ्ट कुमार इन द ऑफिस, एडिशनल भी हो सकता है। Subject verb object are called nuclear elements. Adjuncts are called marginal elements. ये adjunct मतलब जो additional चीज आती है उसको marginal। ये सब ग्रामर के फंक्शनल बेसिस पे है, आपको सारी चीजें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट what you basically need to understand from this is जनरल पैटर्न जो होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब पहले और बाद में ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट हो तो उसके भी बाद में, ठीक है ना। या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब, हाँ सीधा सीधा
कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद अब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा चलता है, SVOC चलता है, SVCO नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, SV, SVC, SVO, SVOC, ये चार याद रखने हैं, SV, SVC, SVO, SVOC, ये चार याद रखो, आपका काम इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? So again, on this screen, you can take a screenshot and you can understand how it is going through. Subject verb, birds fly. Subject verb, penguins are birds. Subject verb complement, sorry, penguins are birds. Subject verb complement, another adjunct type. So सब penguins live in the Antarctica. वो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन meaning pattern का क्या होगा? SVC. अगर object होता है तो C से पहले आता है वो SVO. उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, चलेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट आता है, जैसे शीला मेड कुमार हर सेक्रेटरी, तो वो सी बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। दिस इज हाउ इट गोस, SVOC। सो SVC, SVO, SVOC, ये आपको याद रखने हैं चार। देन बेसिक सेंटेंस टाइप क्या होते हैं? फॉर्मल लेबल्स हम इसको अलग अलग देते हैं। आपको पता है कि डेक्लेरेटिव जो होते हैं अलग तरीके के, डेक्लेरेटिव में दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कुछ भी स्टेटमेंट जो कह रहा है उसको हम डेक्लेरेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। इम्पेरेटिव जिसमें वो किसी को काम करने को बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, जो भी वगैरह। देन एक्सक्लेमेटरी जिसमें वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। ये चार तरीके के सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं, बट इनको हम सिमेंटिक तरीके से भी पढ़ते हैं। सिमेंटिक क्या होता है कि उसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जो फॉर्मल लेबल्स है वो तो फंक्शनल बेस्ड है, हमने चार कैटेगरी बना दी, या तो वो डिक्लेरेटिव होता है, या इंटरोगेटिव होता है, या इंपेरेटिव होता है, या एक्सक्लेमेटरी होता है, समझने के हिसाब से। लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग को हम सिमेंटिक बोलते हैं, ठीक है ना। सिमेंटिक लेबल्स आर बेस्ड ऑन मीनिंग, ये मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग नहीं, MEANING। तो सिमेंटिक मतलब उसके मीनिंग के बेस पे या कंटेंट के बेस पे। तो मीनिंग के बेस पे सेंटेंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट होगा, या वो क्वेश्चन होगा, या ऑर्डर होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या प्रॉमिस होगा, या फिर वार्निंग प्रोहिबिशन वगैरह होगी। वार्निंग मतलब चेतावनी, प्रोहिबिशन मतलब किसी को चेताना हर दे आगे ना, ये सब होंगे। या फिर वो एक्सप्रेशंस होंगे, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी मिसिंग है एक वर्ड। अंडरस्टूड? सिमेंटिक क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है। देन कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन एंड एम्बेडिंग, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जो होता है, आप कंजंक्शन आपने याद होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शन तीन तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मींस दो इंडिपेंडेंट चीजों को साथ में जोड़ता है सिर्फ, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जिसमें दो को जोड़ता है लेकिन एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। और कोरिलेटिव जिसमें दो तरीके के कंजंक्शन होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर वगैरह, वो सब होते हैं। बट ईदर और नीदर नॉर भी या तो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं या सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो मेनली हम उनको दो तरीके में बांट सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन सेंटेंसेस को। तो जो कोऑर्डिनेशन सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया होगा, और सबऑर्डिनेशन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया होगा। और एम्बेडिंग वो होता है जिसके अंदर में दोनों आए हों, या क्लैरिटी नहीं हो कौन सा आ रहा है, और हो सकता है कभी डिपेंडेंट हो कभी नहीं हो, उसको एम्बेडिंग सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोऑर्डिनेशन में भी दो या दो से ज्यादा यूनिट होंगी, लेकिन वो दोनों सेम लेवल के यानी कि इंडिपेंडेंट होंगे। और सबऑर्डिनेट में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल देखो कोऑर्डिनेशन का, गौतम लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज वाइफ वन अ लॉटरी। दो अलग अलग सेंटेंसेस है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं दिया है, दोनों अलग अलग सिर्फ जोड़ के बताए हैं। अभी वही चीज को अगर हम चेंज करके सबऑर्डिनेटिंग बना देते हैं, तो यहाँ पे वाइल लिखा हुआ है। वाइल का कंजंक्शन मीनिंग अलग होता है, एंड का कंजंक्शन मीनिंग अलग होता है। एंड मतलब और, दोनों को जोड़ के बता दिया। वाइल मतलब जब ये हो रहा था तब ये हो रहा था, ऐसा। जहां गौतम का जॉब चला गया वहीं उसकी वाइफ लॉटरी जीत रही है। तो एक तरफ उनकी बैड लक है, दूसरी तरफ उनकी गुड लक है, ऐसा चल रहा है। सो यहाँ पे वाइल के साथ में जोड़ा है, तो इसलिए सबऑर्डिनेट करके बताया है। सेंटेंस को हम चेंज करके बता सकते हैं, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। देखो आप, कोऑर्डिनेशन वाला में सेंटेंस क्या है, गौतम लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज वाइफ वन अ लॉटरी,
मीनिंग इसका भी सेम है जो सबऑर्डिनेशन का है। गौतम लॉस्ट हिज जॉब व्हाइल हिज वाइफ हैड वन अ लॉटरी। यहाँ पे हैड लग जाएगा क्योंकि व्हाइल यहाँ पे उसको व्हाइल की जरूरत पड़ेगी इसको सेंटेंस बनाने के लिए ऐसा। देन एम्बेडिंग क्या होता है? गौतम डिस्कवर्ड दैट हिज वाइफ हैड वन अ लॉटरी। ये एम्बेडिंग है। गौतम ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? कि उसकी वाइफ ने लॉटरी जीती है। अब इसमें लॉस्ट हिज जॉब नहीं आया, मीनिंग सेम नहीं निकला, लेकिन एक सेंटेंस को बड़ा करके बताया जिसके अंदर में दो क्लॉजेस दे दिए और एम्बेड कर दिया उसको, यानी कि जोड़ दिया साथ में। अ क्लॉज बीइंग मेड पार्ट ऑफ अनदर क्लॉज। अ क्लॉज बीइंग मेड पार्ट ऑफ अनदर क्लॉज, यानी क्लॉज को ही एक और क्लॉज जोड़ के सेंटेंस बना दिया अलग से, ऐसा वो एम्बेडिंग होता है। दिस इज द वे थ्री सेंटेंसेस आर मेड। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको और ज्यादा समझ में आएगा इसके ऊपर। और इसके इजीली समझने के लिए आपको याद ही मैंने बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक फॉर्मूला होता है फैन बॉयज। फैन बॉयज यानी फॉर, एंड, नीदर, नॉर, और, बट, और, येट, सो, सिंस, वो सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है, जहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है वो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस को हम दूसरी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वो एम्बेडिंग है। अंडरस्टैंड? दिस इज द चार्ट। ये आपका लास्ट स्क्रीनशॉट है, आप ये ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे है। गौतम लॉस्ट हिज जॉब व्हाइल हिज वाइफ हैड वन अ लॉटरी। ये सबऑर्डिनेशन था। इसके अंदर में सेंटेंस को समझाया कैसे कि सब्जेक्ट क्या है? गौतम। वर्ब क्या है उसका? लॉस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसने क्या लूज किया? हिज जॉब। एडजंक्ट यानी उसके साथ में क्या जोड़ा है? डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ा है, व्हाइल हिज वाइफ हैड वन अ लॉटरी। क्योंकि वाइल के साथ में जोड़ा है इसलिए उसको सबऑर्डिनेट बना दिया, इसलिए सबऑर्डिनेशन है। ये आप समझोगे तो आपको पता पड़ेगा। वाइल अगर नहीं होता, एंड होता, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता या कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस बन जाता। अगर